Hello candidates, welcome to this platform. I am Monica Chaudhary, your coach, and today we will discuss one very interesting question for the interview, which is tell me something about yourself. तो आप सभी को पता है ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा ही जाना है, but the problem is that you guys are not prepared or sometimes you are wrongly prepared. So we are here today with the right structure for this question. I'll tell you one by one what should be the proper way to introduce yourself. So don't make any mistakes. Like people, I have seen many candidates, they make mistakes like after telling their name, hi, my name is so and then after, like in my family, there are these many members, they do so and my father is this and this. So they directly jump to the family background, guys. You see, they haven't told anything about themselves yet. तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है. आपको जबकि क्या समझना है that interviewer is only interested in you. First you tell everything about yourself, everything as in technically, academically, you know, या फिर आप extra curricular activities में भी कहीं अच्छे हो, you are quite active throughout your career. वो सारी चीजें आपको पहले अपनी explain करनी है. Because that recruiter, that interviewer want to know all about your personality. They are interested in you first. Then after you can tell about your family background, people around you. But first, give yourself a priority. So let's understand one by one. First thing first, you have to tell your name. Yes, my name is this or I am this. Don't start with myself. That myself, Rahul, myself, Aarti or so, right? So start with I am or my name is. First question, then it should be place. You hail from, you come from. Then it should be education. You have recently completed your technical education. It could be your BTech, BE, BCA, MSc, MCA, you know, BCom, anything. किस कॉलेज से की वो भी उसके साथ बताओ, किस ईयर में पास आउट की, वो अच्छी तरह वो उसकी एक पूरी लाइन बनेगी. यू हैव टू डिस्क्राइब दैट. देन इट शुड बी योर टेक्निकल स्किल सेट. टेक्निकल स्किल सेट, अभी किस टेक्नोलॉजी पे आप अपने आप को ब्रश अप कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, ऑन विच पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी यू वांट टू बिल्ड योर करियर. You might have taken training or certifications from anywhere, so that you have to mention here specifically, right? And this is the most powerful heading, guys, by the way. मैं अपने सभी candidates को interview preparation में बोलती हूँ कि ये वाली heading पे बहुत emphasize करना है. इस पे जितना अच्छे से आप बोल पाएंगे ना, technical skill set, because this is something your forte, your skill set, जिस पे आप जाके पहले दिन से कंपनी में काम करेंगे. राइट तो ये बहुत अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन करनी है यहाँ पर. इट शुड बी मिनिमम 3 to 4 लाइन्स. फॉर एग्जाम्पल, nowadays I am brushing up my skills on Java technology since I am very much interested in programming. So I am learning Java from particular institute, you know, place, you can mention that name. And then I want to become a Java developer. So for that position only I am applying nowadays. Correct? So क्या क्या सीखा उसमें जावा डेवलपमेंट के प्रोग्राम में, कोर्स में, वो भी बताना है. दैट ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ और मे बी इंटरव्यूअर में आस्क यू दैट क्वेश्चन. यस, दैट ऑल्सो कुड बी द पॉसिबिलिटी कि वो खुद से ये क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न इन दैट ट्रेनिंग और यू नो दैट कोर्स आपने जो भी किया है. तो उसमें उस टाइम में आपको एक्सप्लेन करना है. इसके अलावा और क्या हो सकता है, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे टेक्निकल ट्रेनिंग तक. टेक्निकल ट्रेनिंग को इतनी अच्छी तरह आप एक्सप्लेन करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट जैसे कि कुछ एकेडमिक प्रोजेक्ट हो सकते हैं या फिर ये ट्रेनिंग में ही प्रोजेक्ट रहे होंगे. अब ऑब्वियसली यू आर इनटू डेवलपमेंट, सो यू विल डू सम प्रोजेक्ट्स. कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ हो सकता है डमी प्रोजेक्ट्स करेंगे आप लोग. तो ये जो भी प्रोजेक्ट्स आप करेंगे या फिर कुछ और आपको असाइनमेंट्स मिली होंगी, वो असाइनमेंट्स करेंगे या फिर कॉलेज टाइम से कुछ ना कुछ लाइक सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, यू नो, वो अटेंड किए होंगे, उनके आपके पास सर्टिफिकेट्स भी होंगे. फाइन, बिकॉज दे सच काइंड ऑफ थिंग्स एड वैल्यू टू योर प्रोफाइल. तो वो सारी चीजें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है आपको.
तो ये पूरा एक्सप्लेन करने में जैसे कि टेक्निकल स्किल सेट मेन, और उसके बाद आपके प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स, काइंड ऑफ वर्कशॉप्स, ये वाली चीजें एक्सप्लेन करने में, और हो सकता है जैसे कि किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में, अपने कॉलेज में, स्कूल टाइम में, उसमें भी आप अच्छे थे। फेस्ट होता था जब भी कभी स्कूल कॉलेज में, सो यू वर काइंड ऑफ लीडिंग द प्रोजेक्ट, दैट फंक्शन, यू नो, दैट इवेंट। तो क्या हो सकता है, यानी यू आर गुड इन टीम लीडिंग ऑल्सो। हालांकि ये अभी हम आगे करेंगे, स्ट्रेंथ्स में अब हम जाएंगे तो ये स्ट्रेंथ में भी आ जाएगा आपके टीम लीडर, राइट। बट यहाँ पर ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी यू हैव डन in your school, college. So you explain that everything here in this heading. कहाँ पर टेक्निकल स्किल सेट बताएंगे, उसके नीचे में अगेन लेट मी रिपीट, प्रोजेक्ट्स, सेमिनार्स, वेबिनार्स, असाइनमेंट्स वगैरह जब ये बताएंगे, इसके साथ में ही दैट यू वर लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में यू वर रियली गुड एट, राइट। ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद गाइज नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ्स। Strengths is something which makes you unique from others. You can't really say that मेरे friend ने confident लिखा है तो मैं भी confident लिख दूँ. They may ask you how are you confident, or they will rather see you live whether you are really confident or not. वो तो दिखता है सामने सामने। इसी तरह से कुछ candidates लिखते हैं like I am passionate, तो उसके फ्रेंड ने भी सेम कॉपी करके लिख दिया आई एम पैशनेट। पैशनेट क्या होता है गाइस? पैशनेट इज समथिंग एनर्जेटिक, एक्सट्रोवर्ट, दिखता है आपकी पर्सनालिटी में। यू आर नॉट शाय, यू आर नॉट सिंपली सेल्फ सेंटर्ड, कम बोलना, उस टाइप से आप नहीं हैं, है ना। तो वो आपने उनकी वाली कॉपी करके अपने सीवी में लिख ली, मान लो वो वाली जो यू नो स्ट्रेंथ है, बट इंटरव्यू में उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चनिंग हो जाएगी। Then how are you passionate? You will be blank that time because you really are not passionate. So write only those strengths which are your unique, which are really you are good at. तो कॉपी करके नहीं कहीं इधर उधर से। अच्छा, और क्या हो सकती है स्ट्रेंथ्स? सेल्फ मोटिवेटेड, you don't need anybody to motivate yourself, to motivate you, right? You can only motivate yourself to achieve something in life, to do something in life, or maybe at this point तो अभी आपका क्या टारगेट है? To get a good job opportunity. तो इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आप खुद से मोटिवेट करते हैं अपने आप को। You are that kind of person. So that is your self motivation. और क्या हो सकता है? You are quite disciplined. You always reach स्कूल, कॉलेज, और अभी आगे ऑफिस होगा आपका। You always reach on time. You are quite disciplined kind of person. या डिसिप्लिन और एक चीज से पता चलता है, जैसे जो भी आपके असाइनमेंट है, जो भी आपको करना है काम, that you complete on time. अभी कंपनीज में आगे अभी एक टर्म चलती है डेडलाइंस। You complete all your assignments within the deadlines. तो what is that? That you are quite disciplined, organized. उसको organized भी बोलते हैं। तो ये वाली स्ट्रेंथ्स आप अच्छी तरह पहले इवेल्युएट करो कि आपकी हैं। आर यू रियली ऑर्गेनाइज्ड? तो ही अपने रिज्यूमे के अंदर लिखो और उसको टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जो क्वेश्चन है उसमें बताओ। अदरवाइज डोंट मेंशन इट एनीवेयर, करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट स्ट्रेंथ्स के बाद अभी हमारा नेक्स्ट है हॉबीज, इंटरेस्ट। अब ये भी आपके अपने यूनिक होने चाहिए गाइस। डोंट कॉपी इट फ्रॉम एनीवेयर। अगेन कि मेरे फ्रेंड ने लिखा है ही लाइक्स ट्रैवलिंग, ही लाइक्स वेरी मच रीडिंग बुक्स, आपने भी वही लिख दिया सेम। सो अगेन देयर विल बी क्वेश्चनिंग विच बुक डिड यू रीड द लास्ट, और विच प्लेस डिड यू ट्रैवल द लास्ट। क्या था उस प्लेस में, अच्छा क्या सीखा आपने वहां से, हाउ डिड यू ट्रैवल, हाउ वॉज द ट्रैवलिंग, डिड यू लाइक इट। बट अगर आप कहीं गए ही नहीं होंगे बिकॉज दैट्स नॉट योर रियल हॉबी, तो आप कैसे बताएंगे? अगेन यू विल स्टक। सो विच इज वाई गाइज स्ट्रेंथ्स और हॉबीज अपनी बिल्कुल रियल बताओ। अगर आपको लगता है अच्छा ट्रैवलिंग करना, देन ओनली यू मेंशन इट, और एल्स स्किप इट। और कुछ हो सकता है आपका, यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट,
you like watching TV, maybe cooking in the kitchen, helping your mother in the kitchen stuff. So anything जो रियल है वो आप फिर लिख दो अपना, या बताने के लिए टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में आपको हॉबीज बतानी है, उस तरह से आप बताओ, फाइन. और इट कुड बी लाइक इंटरेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स, ये भी हो सकता है कि एज एंड व्हेन यू गेट टाइम यू लाइक इंटरेक्टिंग विद योर फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स, और आप उनसे उनके टच में रहना, उनसे बातें करना आपको अच्छा लगता है. So that could be the interest of yours. And then the last point, which is family background. Last but not least, you can tell about your family background. As far as my family is concerned, I have 3 or 4 siblings, or maybe 2, जितने भी हैं, and parents in my family. My father is a businessman, or he could be a serviceman. My mother is a homemaker. My siblings are studying. Like आपके जितने भी बहन भाई हैं, 2 हैं, 3 हैं, they might be studying or they might be working. So you tell that clearly in one line only. Don't explain, guys, that my elder sister is married and now she's settled in so and so place, and then my brother is here at this place. There is no need. So simply you can summarize it as in, like, they all are elders to you, they are well settled. My father is a businessman, or my mother is a housemaker. Very simple. So make it simple, short, and to the point, and interesting, which is required as per the JD, job description. और ये जॉब डिस्क्रिप्शन के मैचिंग कब होगी आपकी इंट्रोडक्शन? जब आप जो हमने टेक्निकल स्किल सेट की है ना, 3rd और 4th नंबर पे जो की है, उसमें आपका जो स्किल सेट है वो उस प्रोफाइल के ही मैचिंग होगा, गाइस. इट्स नॉट समथिंग यू आर टेलिंग अबाउट जावा डेवलपमेंट एंड यू आर अप्लाइंग फॉर लेट्स से नेटवर्क इंजीनियर, तो वो ऐसा नहीं होगा. यू आर अप्लाइंग फॉर द रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटी, और उसी के लिए आप बोल रहे हैं अपना स्किल सेट. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. आपने हो सकता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया है, and then that position is also for software testing. तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ही बताएंगे, तभी उस हिसाब से ही बताएंगे. इट्स नॉट दैट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को आप इग्नोर कर देंगे और आप सिर्फ चीजें और कोई, जैसे मैंने डेवलपमेंट किया है कॉलेज टाइम में, अभी आजकल मैं आई एम एक्सप्लोरिंग सम अदर स्किल्स लाइक नेटवर्किंग, और मे बी क्लाउड पे जाना चाह रहा हूँ, ये सब चीजें आपके लिए इरेलेवेंट होंगी फिर. You got it? So stay to the technology which you want to build your career in, right? So that's the simple hack, guys, and you be with it, stay focused, be prepared, then only you face the interview. Good luck. Thank you so much.